थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। नाम गौरव है मेरा एंड मैं कानपुर से पढ़ा बड़ा हूँ। जब मैं छोटा था मेरे दिमाग में था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, बहुत अच्छा करना है देश के लिए। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो वो लगा कि नहीं यार, आई कैन नॉट बी अ साइंटिस्ट, मुझे क्रिकेटर बनना है। सो मैं 9th 10th में आई वॉज इनटू क्रिकेट अकेडमीज, और उस समय ना क्रिकेट का बहुत फीवर था हमारे कंट्री में। आई वॉज अ डाई हार्ट क्रिकेट फैन, मैंने क्रिकेटर बनना है। तो मुझे घर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी कि यार दिस इज़ नॉट अ करियर विच यू कैन चूज। इतनी आबादी हमारी उस समय तक कम थी, 100 करोड़ थी, तो 100 करोड़ में सिर्फ 11 लोग खेलते हैं। लाइक नहीं डैड, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, है मेरे में पैशन है। देन आई थोड़ा सा आई ग्रेजुएटेड 9th 11th 12th, आई फिगर आउट आई कैन डू वेल इन स्टडीज। देन आई गॉट इनटू आईआईटी, सो आई स्टडीड इनटू आईआईटी खड़गपुर। व्हेन आई गॉट इनटू आईआईटी आई थॉट माय लाइफ इज सेट नाउ, आई गेट अ गुड पैकेज एंड आई एंजॉय माय लाइफ। आफ्टर आईआईटी आई फिगर आउट कि आई डोंट वांट टू डू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। देन आई केम इनटू एविएशन, सो आई फ्लाई फॉर एन एयरलाइन, आई एम एन एयरलाइन कैप्टन। एंड ऑन द वे आई discovered my journey of fitness, and then I competed at professional level, Mr. India level. I won many bodybuilding awards. उसके बाद I still figure out something is missing from my life, कुछ और है ऐसा. So then I started my YouTube channel, जिससे लोग मेरे को आज जानते हैं because of my YouTube channel. So I have two YouTube channels. One is Fit Muscle TV for fitness, and another one is Flying Beast, where I make vlogs. And I try to educate people, थोड़ा entertainment factor भी रहता है. So I try to run that channel with my wife, who is making another vlog for me, standing here, right here. Thank you so much. And उसके अलावा एक और चीज़ मैं करता हूँ, I'm a husband. So people don't think that's a job, that's a big job. So I'm working full time as a husband also. How do you think it's a job? When your wife says we need to talk, मतलब गया 3-4 घंटा गया अभी आपका. Yesterday I wanted to go to the gym. My gym time is usually 9 o'clock. So at 8:45 she comes to my room and she says, Gaurav, we need to talk for a bit. So I पता चल गया मेरे को कल का जिम मेरा गया ना, 2 hours are gone. So guys, people ask me कि आप इतना सारा काम कैसे करते हो? आप फ्लाई भी कर लेते हो, you are a captain, you run 2 YouTube channels, you make videos, you are regular. You graduated from IIT Kharagpur, and how do you manage so much? Do you have more than 24 hours in a day? And I have never been able to answer that question because I was like, क्या answer करूँ? It's like if you want to achieve greatness, you have to be obsessed. You have to be obsessed, and some people might think it's crazy, but there is no other way. आपको सोच लेना है कि यार I have to succeed and I have to work towards a goal. There is no other way. You have to be crazy. When I used to compete for a bodybuilding competition, कितने लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं? पीछे वाले जिम कितने लोग जाते हैं? So if you're working out in the gym, आपने कोई वेट लगाया, आपने 10 रेपिटेशन मारे and you keep the weight down. But to become a champion, you can't keep the weight down when you are tired. Your mind has the capability to go up to 11, 12, 13 reps, but your body gives up. And your goal in your head is not that strong कि आप वहाँ तक अपने body को torture. It's a torture in the gym. You have to torture your body in the gym, and that's how you grow. So giving you a personal example which I have never shared before, I used to tell myself, एक set मैंने जैसे 10 repetition के मारे, so next one has to be, I have to do 12 reps no matter what, and if I don't do 12, something bad would happen to me. I'll lose my job if I don't do 12, or I'll lose someone very close to me if I don't do 12 repetitions. So that fear made me do 12 repetitions, and you must be thinking he's crazy. ऐसा 2 repetition के लिए इतना बढ़िया कौन सोचता है? But you have to be crazy, guys. If you want to achieve something in life, you have to be crazy. Otherwise, you can't achieve stuff. You think people working out in the gym, लोग फ़ोन पे ना ऐसे टेक्स्ट करते रहते हैं जिम में, अगर आप जाके देखेंगे, या बात करते रहते हैं, वो भी अपने दिन का 1 घंटा निकाल रहे हैं. और मैं जब वर्कआउट करता था, मैं भी अपने दिन का 1 घंटा निकालता था. एंड माइंड यू, आई वाज कंपीटिंग विद पीपल हु वर फुल टाइम इनटू बॉडी बिल्डिंग, हु वर जिम प्रोफेशनल्स, हु वर ट्रेनर, जिनका काम ये था. और मेरा काम वो नहीं था. मेरा काम था, आई वाज एन एयरलाइन कैप्टन, बट आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू बी ऑन स्टेज एंड आई वांटेड टू गेट दैट ट्रॉफी. सो इट्स जस्ट दैट हाउ बैड यू वांट योर स्टफ. नाउ यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई बिकॉज आई वांटेड टू एजुकेट पीपल, कि मुझे था कि मैं आई कांट रीच सो मेनी पीपल. सो बहुत लोग पूछते हैं कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं. आई हैव ओवर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हु फॉलो मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइज गिविंग मी दैट सपोर्ट. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सा कोर्स करें फिटनेस में जिससे कि हमें सक्सेस मिल जाए. एंड आई हैव नो आंसर फॉर दैट बिकॉज सब कोर्स आपको एक ही चीज़ पढ़ाएंगे.
महाभारत में एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था जब अभिमन्यु का वध हुआ था एंड अर्जुन उस समय बैटलफील्ड पे नहीं था, उसको दूर ले गया था एंड नेक्स्ट डे ही केम टू नो दैट अभिमन्यु का वध हुआ है और 7 महारथियों ने मिलकर मेरे निहत्थे बालक की हत्या की है। अर्जुन ने उस समय तपस्या या क्या कहते हैं दृढ़ निश्चय कर लिया था, क्योंकि जयद्रथ था जिसने अभिमन्यु को घुसवाया था चक्रव्यूह में। उसने कहा था कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस होल स्टोरी विल कनेक्ट गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसने कहा था मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। अगला दिन हुआ एंड वो जयद्रथ का वध नहीं कर पा रहा था। उस रात कौरव शिविर में जयद्रथ चिंतित था। गुरु द्रोणाचार्य के पास वो गया कि कल पूरी कौरव सेना मेरी सुरक्षा में लगा दी जाए, क्योंकि अगर मेरा वध हो गया तो ही वॉज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द कौरव आर्मी। लेकिन शकुनी मामा के दिमाग में ये था कि जयद्रथ को एक श्राप मिला हुआ है कि जो भी उसका सर काटेगा, जो भी बंदा जयद्रथ का सर काटेगा उसमें उसके अंदर विस्फोट होगा। सो कौरव एक तरीके से निश्चिंत थे कि अगर जयद्रथ मर गया तो अर्जुन का अंदर विस्फोट होगा और अगर जयद्रथ नहीं मरा तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा। सो जयद्रथ द्रोणाचार्य के पास गए। उसने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि मैं भी आपका शिष्य हूँ। उस समय द्रोणाचार्य ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली जयद्रथ से कि बालक, मैंने आपको और अर्जुन को सेम शिक्षा दी थी, सेम गुण दिए थे, आप दोनों सेम गुरुकुल में थे, बट अर्जुन मेरी शिक्षा से कभी भी संतुष्ट नहीं रहा। जो मैंने उसको शिक्षा दी उसको वो सिर्फ लेके बैठ नहीं गया, उसने निरंतर प्रयत्न किया अपनी धनुर्विद्या को और बेहतर बनाने के लिए। उसने मेरी दी हुई शिक्षा को एक स्तंभ मान के अपनी धनुर्विद्या को आगे ले गया। बट तुमने क्या किया? जो शिक्षा मैंने तुमको दी तुम उससे संतुष्ट हो गए। सो दिस इज व्हाट पीपल हु अचीव ग्रेटनेस, दे डोंट रिलाई ऑन सिंगल कोर्स कि मैं कौन सा कोर्स कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मैंने 12th में 95% आ गए, नाउ आई एम सेट, माई लाइफ इज सेट। यू हैव टू ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स ग्रेटनेस। आपका जो सेल्फ एफर्ट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एंड दैट्स वन थिंग विच आई वांट टू टेल द यूथ टुडे कि देयर इज नो कोर्स, देयर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला दैट कैन गिव यू सक्सेस। हमेशा आपको सेल्फ प्रयास करना ही पड़ेगा। एंड नाउ व्हाई आई ट्राई टू प्रीच ऑल दिस ऑन माई ब्लॉग चैनल विच इज़ फ्लाइंग बीच की यार मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी हम इंडियंस होते हैं, हम बाहर जाते हैं, वी आर लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन वी मीट पीपल आउटसाइड इंडिया। और उसका रीज़न ये भी एक मेजर रीज़न है कि हमें लगता है कि हम उनको ऊपर देखते हैं हमेशा, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुद का इतिहास कितना महान रह चुका है। जैसे मैंने महाभारत की बात की, कितने लोग मानते हैं यहाँ पे कि महाभारत माइथोलॉजी है? आई जस्ट वांट टू शो ऑफ हैंड्स, इट इज़ नॉट ट्रू। देयर आर क्वाइट फ्यू पीपल। तो आई थिंक आई एम अज्यूमिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि महाभारत कथा, रामायण कथा सही में हुई थी। सो मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है कि हमारी एंशिएंट साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप थी, महाभारत हुई थी, रामायण हुई थी, बट उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें 7000 साल पूर्व हुई थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इन सब चीज़ों के, तो इसलिए हम इनका खनन कर देते हैं कि ये सब हुआ ही नहीं था। और जो विमान का आविष्कार 1906 में हुआ था राइट ब्रदर्स के द्वारा, तो राइट ब्रदर्स ने पहले किया, तो हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि पुष्पक विमान था पहले और वो उड़ता था, और पहले हवा में महल होते थे और कुबेर जी ने सोने की लंका का निर्माण किया था। हिस्ट्री बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए थे, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, उसको हम माइथोलॉजी नहीं बोलते। अलेक्जेंडर द ग्रेट 300 BC में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने धरती पे कब्जा कर लिया था। बहुत ही महान राजा थे, इसलिए उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। वन शॉकिंग थिंग इज अलेक्जेंडर का भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। उसके बारे में लिखा गया था, राइटर्स ने लिखा था, अलेक्जेंडर की मृत्यु के 100 से 400 साल बाद उसके बारे में लिखना शुरू किया गया था। सो नाउ वी बिलीव Alexander existed and it is history. We don't say Alexander is mythology, but we still believe that Mahabharat and Ramayana are mythology. Egypt, anybody has कोई Egypt गया हुआ यहाँ से? Anybody? Anybody has been to Egypt? नहीं। इजिप्ट में एक स्फिंक्स का टार है, बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। अगर आप विकीपीडिया पे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो 2500 साल पुराना है।
बट अगर वहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से एक जियोलॉजिस्ट वहाँ पे गए रिसर्च करने की, मेरे को देखना कि 2500 साल पुराना है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाउ डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक इट्स 2500 साल पुराना? तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स वी थिंक इट इज़ 2500 ईयर्स ओल्ड। बट देन उन्होंने कहा कि आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज जो स्टोन होता है, जिस स्टोन का वो बना हुआ है, स्टोन की डेटिंग नहीं हो सकती। यू कांट, जैसे लकड़ी की डेटिंग होती है, बाकी चीज़ों की डेटिंग होती है, आप उसकी एज पता लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है। स्टोन की डेटिंग नहीं होती। स्टोन कैन बी बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, वी डोंट नो। सो उन्होंने अपने खुद के टेस्ट किए और उन्होंने ये पता लगाया कि जो इरोजन हुआ है उन पत्थरों में, वो इरोजन घनी वर्षा से हुआ है। और इजिप्ट का वो रीजन रेगिस्तान है, तो बारिश कहाँ से हो गई? और पिछले 5000 साल तक इजिप्ट में बारिश नहीं हुई क्योंकि वो एक रेगिस्तान का रीजन है। सो देन ही सेड कि इट इज़ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड, it can be 7000 years old. But what date? He said, I don't know. So what our Wikipedia says, what our history book says, what we have been taught in class, वो सब गलत प्रूव हो गया। एंड वी स्टिल बिलीव वो हुआ था, बिकॉज वट एवर वी टॉट इन स्कूल, हमारी उस पर बिलीव इतनी बढ़ जाती है कि हम बाकी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते। सो दैट मोन्यूमेंट इज़ दैट ओल्ड। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में एक बहुत ही विशाल काय मंदिर है शिव जी का, जिसका नाम है कैलासा टेम्पल। मेरी बहुत इच्छा वहाँ जाने की, मैं जा नहीं पा रहा किसी कारणवश, समय की कमी के कारण। सो वो एक मोनोलिथिक टेम्पल है जिसको कि बोलते हैं तकरीबन 8th सेंचुरी में बनाया गया था वो। और मोनोलिथिक टेम्पल क्या होता है? एक बहुत विशाल काय पहाड़ था वो, उसको पहाड़ से कार्व किया गया, एज इन की पत्थर हटाया गया उसको। बिल्डिंग, इट इज़ नॉट रॉक के ऊपर रॉक चिपकाई गई जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इट इज़ सिंगल रॉक, दैट होल टेम्पल इज सिंगल रॉक। सो इमेजिन ये स्टेडियम एक सिंगल पहाड़ था और उसको ऊपर से खोद के ये स्टेडियम बनाया गया। सो इमेजिन कितनी प्लानिंग लगी होगी वो मंदिर बनाने में। और उस मंदिर को बनाने में 400,000 टन 400,000 टन रॉक्स वहाँ से निकाली गई थी। और ऐसा विकीपीडिया दोबारा कहता है कि वो मंदिर 18 साल में बना था। तो अगर आप अनुमान लगाएंगे कि एक दिन में 400,000 टन रॉक अगर 18 साल में निकली, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आई एम नॉट डूइंग दैट कैलकुलेशन हेयर, सो इट कम्स आउट टू बी कि 1 घंटे में उन लोगों ने 2.5 टन रॉक निकाली है हर मजदूर ने। एंड दिस इज अज्यूमिंग फॉर 18 years दे वर्क स्ट्रेट, देयर इज नो होली, देयर इज नो दिवाली, देयर वाज नो रेन, दे वर्क स्ट्रेट, विच इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। 2.5 टन रॉक 1 घंटे में एक इंसान नहीं निकाल सकता। एंड वॉट विकीपीडिया सेज कि वी डिडंट हैव टूल्स एट दैट टाइम, वो हथौड़ा और छेनी लेके बनाया गया। सो इट सीम्स अ लिटिल इम्पॉसिबल, इफ यू थिंक अबाउट इट सीम्स अ लिटिल इम्पॉसिबल। सो वॉट आर हिस्ट्री बुक्स हैव taught us, what they mention, if you think logically it seems a little impossible. Same thing when you go to Stonehenge in UK, वो ऐसा लगा कि आपको पत्थर रखे हुए हैं, but those one rock is 70 ton rock and they not just kept एक के ऊपर एक, उसमें प्रॉपर होल्स हैं अंदर, वो होल के अंदर ये रॉक गया है, यहाँ पे एक जॉइंट है, they're very scientifically made, which we can't explain, the modern archaeologists can't explain, because even if they try to explain, they will have to रीराइट द हिस्ट्री बुक्स एंड दे विल हैव टू से कि यार हमने जो इन्वेंशन किया उससे पहले इन्वेंशन हो चुके थे। लेज़र टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई थी वर्ल्ड में, उससे पहले लेज़र टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। सो ऑल दीज आर एविडेंसेस विच मेक मी बिलीव दैट इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री वॉज एट इट्स प्राइम एंड देन समथिंग हैपेंड एंड वी लॉस्ट एवरीथिंग। एंड मेरे चैनल का बस यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को थोड़ा अवगत करा सकूं अपने हिंदुस्तान की गौरवान्वित हिस्ट्री का, ताकि लोग थोड़ा गर्व कर सकें। और जब आपको गर्व होगा तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और एंड इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू विल डू वंडर्स इन लाइफ यार। सो दैट वाज माय शॉर्ट मैसेज गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई ट्राई टू डू दिस। मेरे चैनल पे एंटरटेनमेंट रहता है, हंसी मजाक रहता है, बट द कोर वैल्यू विच आई वांट टू डिलीवर टू माय ऑडियंस इज आई वांट टू मेक each and every one of you proud of who we are. Thank you so much.